नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 53 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਜੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ? ਪਰ ਤੇਰਾ ਮੰਨੂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 200 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ 10,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੈਰੀਅਰਸ ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ 111 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਮਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SKM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਪਾਤੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆ 53 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, BP ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਘਟਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨ ਫੇਲਿਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਤਰਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। डॉक्टर ने जानकारी दी है जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत नाल जुड़ी, की कुछ डॉक्टर कह रहे हैं वो भी तुहानू सुना देने। जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की सेहत की करेंगे। मैं डॉक्टर सुलेमान सिंह, हार्ट स्पेशलिस्ट USA। हमारी टीम है जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की टेक केयर कर रही है। साथ में हमारे युवा डॉक्टर्स सारे देश से जो आते हैं और उनकी सेवा करते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे नहीं लगता था कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा दिन आएगा कि मुझे कोर्ट्स को या सरकारों को या लोगों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा जो मरीज़ है जिसकी मैं सेहत की टेक केयर कर रहा हूँ वो बीमार है। एक बंदा जो 50 दिन से ऊपर से जिसने कुछ अपने मुंह में ना डाला हो, एक बूंद रोटी ना खाई हो, उसका मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि वो बीमार है, वो ठीक नहीं है। और उस देश में प्रूव करना पड़ रहा है जिस देश में महात्मा गांधी जैसे लोग कभी अनशन किया करते थे। उस देश में प्रूव करना पड़ रहा है जिस देश में रामानंद जैसे लोग, CIT UK, जिन्होंने 75 दिन से ज़्यादा अनशन किया, उस स्टेट के लोग जहाँ से दर्शन सिंह जी फेरूमान थे, आज उन लोगों को मुझे प्रूव करना पड़ रहा है कि जो मेरा मरीज है, इस देश का किसान, जो इस देश का पेट भरता है, आज बॉर्डर पे बैठा है अपने हकों के लिए, इस देश के किसान मजदूर के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए, उसको मुझे आज प्रूव करना है आपको कि वो वाकई बीमार है। और क्यों प्रूव करना है? क्योंकि इस देश के मीडिया ने,
इस देश के जो पावर है, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला दिया है। पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया कि ये किसान इकट्ठे नहीं है, हमने वो प्रोपेगेंडा तोड़ दिया। किसान इकट्ठे बता दिया उन्होंने, SKM ने साथ में मीटिंग करके बता दिया हम इकट्ठे हैं भाई। तो वो उनको पची नहीं बात। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला इन लोगों को मारना, कल मारना नहीं है, इनको बदनाम करना है। तो बदनाम करना शुरू कर दिया, बार बार मीडिया में रिपोर्टें निकाली। और उस रिपोर्टों का मतलब क्या था? सीधा ये था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो बंदा खा रहा है। ये देखिए रिपोर्टें नॉर्मल आ गई हैं, लोगों को गुमराह किया गया। और मीडिया सारा इनके साथ है, जरा स्ट्रॉन्ग मीडिया हाउसेस हैं इनके साथ है। तो कोई भी बात ये मीडिया में चला सकते हैं। हमारा तो सोशल मीडिया भी इंडिया में ब्लॉक हुआ है, जो भी बंदा बोलता है उसका सोशल मीडिया ब्लॉक हो जाता है। मीडिया में तो क्या बोलना, सोशल मीडिया भी ब्लॉक हो जाता है। तो मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, ये वीडियो प्लीज शेयर करना। इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये लोगों तक पहुंचे बात कि हो क्या रहा है इस देश में, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन तो करनी थी कि एक किसान अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हो गया है, इस देश के फ्यूचर के लिए, MSP के लिए, इस देश के लिए। कभी नारा हुआ करता था जय जवान जय किसान, और आज हम उसी किसान का गला घोट रहे हैं। तो बात करते हैं। पहली बात सवाल किया गया था हीमोग्लोबिन का, बोले कि उनकी हीमोग्लोबिन कैसे नॉर्मल है। और मेरे भाई, मैं आप लोगों को बोलूं, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से आपको साइंस के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, आपके ना रेड ब्लड सेल में एक प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। कैसे एक्सप्लेन करूं? जैसे एक कार में सीट होती है जिस पे आप बैठते हो और कार में आप घूमते हो, राइट? ऐसे ही आपके ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन घूमती है आपके शरीर में। और जो रेड ब्लड सेल की जिंदगी होती है वो 120 दिन होती है। तो इनका अनशन तो अभी 52 डेज हुआ है, तो हीमोग्लोबिन तो गिरने वाली नहीं है। तो आप वो टेस्ट ही क्यों कर रहे हो? और फिर ऊपर से सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हो कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, बंदा नॉर्मल है। और अब जो ब्लड होता है वो किससे बनता है? वो केवल RBC से नहीं बनता, हीमोग्लोबिन से नहीं बनता, उसमें प्लाज्मा भी होता है, उसमें व्हाइट सेल भी होते हैं। और जो बंदा अनशन कर रहा हो, रोटी ना खा रहा हो, पानी ना पूरा पी रहा हो, तो क्या होता है, ओवर टाइम उसका प्लाज्मा कम हो जाता है। तो जब प्लाज्मा कम हो गया तो जो RBC की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, रहती उतनी है। और अब बोलोगे कैसे? अब मैं फिर ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। आप एक गिलास लो, गिलास में पानी डालो और नमक डाल दो, पानी निकाल लो, तो क्या हुआ? नमक उतना ही है, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गई। इसको हम बोलते हैं हीमो कॉन्सेंट्रेशन। ये जो खून है ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। तो जो अब लैब वैल्यूज होंगी आपकी, उसमें आपकी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बड़ी बताई जाएगी, सिंपल। और देखिए आपने ऐसे बोल दिया कि जगजीत सिंह जी डल्लेवाल जी देखो झूठ बोल रहे हैं, तो अब गलत किया ना आपने, मानो? नहीं मानना। अभी दूसरी बात करता हूं। आपने बोला क्रेटिनिन कैसे नॉर्मल है। भाई क्रेटिनिन क्या होती है? क्रेटिनिन जो आपका मसल होता है ना, अब जो एक्सरसाइज करते हैं उनके बड़े बड़े मसल होते हैं, जो नहीं करते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके मसल छोटे होते हैं। और जो बंदा अनशन में बैठा हो 50 दिन, उसके तो मसल रहते नहीं है। तो ये मसल की ब्रेकडाउन होती है क्रेटिनिन। वो क्रेटिनिन जो है वो किडनीज क्लियर करती हैं। जब किडनीज डैमेज होते हैं क्रेटिनिन बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा क्रेटिनिन बनाए ही ना, क्योंकि उसके मसल बहुत कम है, इसीलिए भाई जब हमारा कोई पेशेंट आता है ना, तो हम उसकी क्रेटिनिन चेक करते, जो एल्डरली पेशेंट होता है हम उसके GFR देखते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने क्रेटिनिन देखी, GFR देखा नहीं। GFR उनका कम था। हमने बार बार आपको बोला कि GFR कम है, किडनीज में हिट हुई है, उनकी ऑर्गन्स में हिट हुई है। लेकिन आपने वो बात बता दी लोगों को, लेकिन वो बात जो बताने वाली थी वो आपने छिपा ली। कितना गलत किया आपने। फिर हमने आपको रोज बोला उनका वेट कम हो रहा है, हमने आपको पूरा वेट किया। फिर हमने आपको बोला कि नहीं, अब हम उनका वेट नहीं ले पा रहे क्योंकि उनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो जाता है। जब भी हम उनको उठाते हैं उनको चक्कर आ जाते हैं। लेकिन आपने हमको मजबूर किया, हमने कल उनका वेट किया।
20 किलो उनका वेट कम आया। वीडियो भी बना के आपको दिखाई हमने। अब हमारा लिटरेचर देखो, मेडिकल लिटरेचर देखो। मेडिकल लिटरेचर में मालूम है क्या बोलते हैं? 0.3 जो किलोग्राम बाहर है, अगर कोई प्रोलॉन्ग फास्ट कर रहा है, पहले महीने में बहुत तेजी से वेट कम होगा, लेकिन बाद में जब आपका पानी बहुत कम रह जाता है शरीर में, तो शरीर एक जोन में चला जाता है, वो कंजर्व करता है अपनी एनर्जी को। तो जो वेट है ओनली 0.2 टू 0.3 किलोग्राम पर डे, 0.3 किलोग्राम पर डे गिरता है। तो अगर आप उनकी एवरेज करिए डलेवाल जी की, 25% उनका वेट कम हो चुका है आज। 25% वेट कम हो चुका है। अब कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आपको। तो फिर आपने एक और बात की, लिवर फंक्शन टेस्ट की बात हुई। लिवर फंक्शन टेस्ट उनके फ्लक्चुएट करते हैं। AST ALT बढ़ा हुआ है, AST ज्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई बंदा फास्टिंग कर रहा हो, क्या उसके लिवर फंक्शन टेस्ट बढ़ने चाहिए? नहीं बढ़ने चाहिए। जब तक वो अपने मसल स्टोर्स, फैट स्टोर्स, हड्डियों के स्टोर्स, सारे स्टोर्स यूज करता है, तो उसका शरीर अपने जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो यही डल्लेवाल जी का शरीर कर रहा है। वो अपना सारा मांस जो उनका है वो लटका हुआ है, मसल उनके खत्म हो चुके हैं, हड्डियां वो उनका शरीर तोड़ रहा है, और अपनी जो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, किडनीज, लिवर, ब्रेन, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहा है। और आप लोग क्या करते हैं? आके अल्ट्रासाउंड कर देते हैं और बोलते हैं अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है। क्या ये अच्छी बात की आपने गलत किया। मैं उनको नहीं बोलता जो कर रहे हैं, वो तो बेचारे अच्छे लोग हैं, डॉक्टर हमारे अच्छे लोग हैं, सरकारी डॉक्टर भी मेरे भाई बहने हैं, अच्छे लोग हैं। मैं उनसे बात करता हूं, जितने भी सरकारी आगू उस बॉर्डर पे आए, जिन्होंने मेरे से बात की, मेरी टीम से बात की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन बात पीछे की है, जो पीछे बैठे हैं ना लोग, ये गलत लोग हैं, जो ऑर्डर करते हैं ये करो। मेरे जो आर्मी के भाई हैं, वो CRP के भाई, वो गलत नहीं है। मेरे पुलिसिए भाई पुलिस में, वो गलत नहीं है। वो नहीं चाहते किसानों के ऊपर डंडा मारना, लेकिन वो जो पीछे बैठे लोग हैं, जो कॉर्पोरेट के कुत्ते हैं, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन जो उनके हाथों में खेलते हैं, वो मोनोपोली के हाथों में खेलते हैं, वो मेरे भाइयों को ऑर्डर करते हैं कि डंडा मारो अपने भाइयों के ऊपर, किसान भाइयों के ऊपर डंडा मारो। वो बंदे गलत हैं, आपको पाप लगेगा भाई। अगर भगवान है ना, जो आप काम कर रहे हो भी किसानों के साथ, जैसे आप हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, पिछले 2 साल आपने यही कुछ किया। चलो आपने तो किया मैं लेकिन अपने भाइयों से बोलता हूं, जो हमारे किसान मजदूर भाई हैं, यार आप तो समझो ये क्या हो रहा है, ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों चुप हो यार, बोलो यार। चलो फिर बात इन्होंने की इलेक्ट्रोलाइट्स की। इन्होंने बोला इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे, फिर एक और मैं ऐसा तो मैं सारा दिन निकाल दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बोला इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे नॉर्मल है। कोई भी डॉक्टर है वो बोलेगा आपको, जब आपकी बॉडी स्टार्वेशन में जाएगी ना, तो आपका एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा, आपका ADH बढ़ जाएगा, जो आपके हार्मोन्स है ना शरीर के, वो काम ओवर टाइम करना शुरू कर देंगे, और वो सब कुछ करेंगे, हड्डियों को तोड़ेंगे, मसल्स को तोड़ेंगे, किडनी से सब कुछ प्रिजर्व करेंगे, एक एक बूंद पानी की प्रिजर्व करेंगे कि अपने इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल रहें। कभी कभी गिरेंगे, लेकिन फिर वो नॉर्मल कर लेगा। यही हम देख रहे हैं। कभी हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं, कभी हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फ्लक्चुएट, हाँ, इसलिए मैंने अपनी टीम को बोला फ्लक्चुएट बोलो। बड़े ऐसे साइंस हैं भाई, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन उनको हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहे हैं, पानी मुंह से नहीं पिया जा रहा, इतनी ज्यादा दिक्कत आ रही है, और आप लोग उनके ऊपर सवाल कर रहे हो। ये अच्छा नहीं कर रहे हो आप। और क्या, एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का सवाल आता है। बोलते हैं कि जो बंदा फास्ट करता है उसका शरीर जो है कैंसर को भी फाइट कर देता है। और मेरे भाई, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है जो चल रही है, वो बंदा अनशन पे बैठा है, उसका शरीर मर रहा है, आप कैंसर की बात कर रहे हो। उसका शरीर ही नहीं रहेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे।
कभी 50 डेज की इंटरमिटेंट फास्टिंग सुनी है? मैं ये कह रहा हूं कि अपना देश का जो एजुकेशन का पद्धर है इतना गिर चुका है कि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, और हमारा जो मीडिया जो उनको बोलता है वो मान लेते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो क्या होती है? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है, ये कैंसर नहीं मारेगी, ये बंदे को मारने की बात है। मैं फिर से कह रहा हूं सरकार से, मुद्दा है कि किसानों से बात कीजिए। मुद्दे को आप घुमाएंगे फिराएंगे, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। किसानों की जो मांगे हैं वो ठीक हैं, उनके साथ बात कीजिए। अगर कल और जो लोग ये टेस्ट करते हैं, गलत रिपोर्टें जाके पेश करते हैं कोर्ट्स में, मैं उनको बोलूंगा इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आज जो मर्जी बोल दीजिए आप, आपकी मर्जी है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, काउंटर हम करेंगे आपको, लेकिन इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कल मैंने डलेवाल जी से फोन किया, मैंने अभिमन्यु से फोन किया, मैंने कहा भाई देखो ऐसा कुछ लोग आपको बोल रहे हैं, मुझे फोन आते हैं कि क्यों ये हो रहा है, और आप मानोगे कि वो बुजुर्ग टेलीफोन पे उदास हो गए। डलेवाल जी उदास हो गए कि यार मैं क्या करूं, मैं डॉक्टर साहब मैं क्या बोलूं, मैं क्या कर सकता हूं। एक बंदा अनशन पे बैठा है यार, वो चुप करके बैठा, वो आपको कुछ नहीं बोल रहा, वो इतना बोल रहा है मैं खाऊंगा नहीं, मैं अपने आप को मार लूंगा, आप उसको भी बदनाम कर रहे हो। ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप। मैं आपको ये बोलता हूं, आपको प्रूव करना है ना कि वो बंदा बीमार है, तो मेरा चैलेंज है आपसे, आपके पास डॉक्टर नहीं है क्या? डॉक्टर भेजिए उनके कमरे में, 24 आवर्स डॉक्टर उनके कमरे में आप लगा दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। क्यों नहीं किया आपने आज तक ये? हमारे क्यों डॉक्टर वहां लगे हुए हैं? एक डॉक्टर भेजिए 24 आवर ड्यूटी पे। क्या आपके पास डॉक्टर नहीं है? नहीं है तो हमको बोल दीजिए, हम आ जाते हैं आपके पास। एक बार बोलिए कि डॉक्टर की कमी है आपको, एक बार बोल दीजिए, डॉक्टर्स की लाइन लगा देंगे। देखिए ऐसे मेरे पास पूरी, और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको, ये मेरे पास सब टेस्ट हैं, ये टेस्ट कल मेरे पास नहीं है, ये कल के टेस्ट ही हैं। जब से ये कुछ हो रहा है तब से टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, और ब्लड टेस्ट वहां पे जो भी डॉक्टर आता है पंजाब सरकार से उसको भी दिए जाते हैं, कोई सेंटर से आए सबको दिए जाते हैं, ये उनके पास भी है। इसमें एक टेस्ट है भाई, कीटोन बॉडीज, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे सारे टेस्ट हैं, ये कोई हिडन नहीं है। किसान हिट को ये नहीं कि उनको दिए जाते हैं, ये पहले दिन से ऊपर आ रहा है। जब से डे 7 से हम डे 8 से ये कर रहे हैं ना कीटोन का, ये ऊपर आ रहा है। ये प्रूव करता है कि बंदा नहीं खा रहा है, ये प्रूव करता है कि बंदा अपने शरीर को तोड़ रहा है, उसका शरीर उसके शरीर को खा रहा है। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता गोरों ने भी महात्मा गांधी के साथ ऐसा किया होगा जो आप अपने किसान के साथ कर रहे हो। मैं सब लोग हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं और भी मेरे पास है, मैं एक क्या आप लोगों को करूँ। मैं अगर इतना भी आप नहीं मानेंगे तो क्या मुझे लगता है कभी नहीं माने। मैं एक चीज फिर से कह देता हूँ, जब आप स्टार्वेशन मोड में होते हो ना, तो आपका बॉडी आपका शरीर कंजर्व करना शुरू करता है एनर्जी। वो सारी एनर्जी ऑर्गन्स पे लगाता है, उन ऑर्गन्स पे कि जिनको उन्होंने जिंदा रखना होता है, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट। और जिस दिन ये एक भी ऑर्गन फेल होती है ना, तो सारा शरीर फेल हो जाएगा। यही हम वार्न कर रहे हैं, जिसको मल्टी ऑर्गन फेलियर कहते हैं। और साइंस के हिसाब से मैं बता दूं, मैं पहले 7 दिन से मैं कहता हूँ 7 दिन के बाद बहुत औखा हो जाता है। और ये मैं बता दूं कि हर एक साइंस कह देती है कि 70 दिन के बाद तो बचना नामुमकिन जैसा हो जाता है। मैं लेकिन आपको पंजाब से दो बंदों के नाम बोले, रामानंद जो CITU के थे, 75 दिन से ज्यादा जिए, ऐसे लोग हैं हमारे पंजाब के इतिहास में। दर्शन सिंह जी फेरूमान 74 डेज वो जिए, और हमारे भगत सिंह। सो इतिहास तो बहुत हमको ताकत देता है, और यही 3 चीजें होती है जो बंदा कितनी देर जिएगा अगर मुझे कोई पूछे तो। सबसे पहले वो उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, इसलिए उनको हम कमरे में रखते हैं, रजाइयों में रखते हैं कि उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम से कम हो। फिर उनके ऑर्गन स्टोरेज कितनी है, कितनी फैट स्टोरेज है, वो तो उनकी बहुत टूट चुकी है। अभी तो वो अपना शरीर
हड्डियों के जैसा, मतलब कि वहाँ स्थिति है कि हड्डियों को खा रहे हैं। और तीसरी होती है मेंटल फिटनेस। और पंजाबियों की मेंटल फिटनेस आपको सारा दुनिया को मालूम है कि इनकी मेंटल फिटनेस क्या होती है। अगर इस देश को बचाने वाला कोई है तो सबको मालूम है कौन है, किन्होंने सबसे ज़्यादा जानें दी। आज भी अपनी जान देने के लिए सबसे पहले बॉर्डर पे वो होते हैं, और आप उन लोगों के ऊपर उंगल कर रहे हो। ये गलत कर रहे हो। मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे पंजाब सरकार से, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो रिपोर्टें जाती हैं ना, प्लीज़ भगवंत मान जी, आप अच्छे बंदे हो, आप इनको चेक करो। ये कौन कर रहा है यार, ये आप नहीं हो सकते। मुझे नहीं, आप पे मुझे इतना तो यकीन है कि आप ऐसा नहीं होने दोगे। ये कौन बंदे कर रहे हैं, आप प्लीज़ ये नोटिस लो। और मैं पंजाब सरकार से एक और बेनती करूँगा, हमारे वो बंदे जो बैठे हैं 111, देखो अब वो बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। डल्लेवाल जी पहले बैठे थे, और सारा जो आंदोलन है उसकी जो टेक केयर हमारी टीम कर रही है। बहुत औखा हो रहा है जी। मैं वॉलंटियर से बेनती करता हूँ, टीम को ज्वाइन करो, वध से वध डॉक्टर्स की हमें ज़रूरत है। बहुत औखा हो जाता है दिन रात उन सब का टेक केयर करना। तो मैं भगवंत मानसी से बोलता हूँ, डॉक्टरों की ड्यूटी लाओ, वहाँ पे बैठे वो। एक हम डल्लेवाल जी के कमरे में बिठा देते हैं, ये जो कि ये चीज़ें ना हो, और बाहर वहाँ पे भी हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। और एक जो मैं लोग हैं ना जो नंबर्स की बात करते हैं, आपने इनके डल्लेवाल जी के नंबर्स की बात की ना, मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ कुछ देश के नंबर्स की, देश की स्थिति क्या है। इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग बता रहा हूँ मैं आपको, 131 आउट ऑफ 189। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 आउट ऑफ 180, 180 सबसे घटिया। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 117 आउट ऑफ 128। WHO वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम रैंकिंग 112 आउट ऑफ 191। एजुकेशन डिस्पैरिटीज, जेंडर इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा कम, ऑलमोस्ट लास्ट में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 आउट ऑफ 127, बच्चे मर रहे हैं देश में। ये है फैक्ट्स जिनके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए, लेकिन आप चर्चा क्या कर रहे हैं, डल्लेवाल जी की रिपोर्टों के ऊपर। मैं देश के हर एक नागरिक के हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जो देश का किसान है ना जी, MSP के लिए लड़ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि जब MSP मिलेगी ना तो देश की जो इनकम सिक्योरिटी है फार्मर्स की वो होगी, जो हमारी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगी, जो वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन होगा, हमारी जो ट्रेड है वो बढ़ेगी, जो हमारी रूरल इकानमी है वो स्ट्रांग होगी, जो हमारी देश की फूड सिक्योरिटी है वो बढ़ेगी, जो हमारी एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट होगी, जो हमारा फूड वेस्ट होगा वो कम होगा, जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस तरफ से माइग्रेशन हो रही है वो कम होगी, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है खास करके रूरल का, गाँव का, वो बढ़ेगा, जो हमारा पैसा है, जो अभी ज़्यादा पैसा 10% लोगों के हाथ में है वो सारे देश के हाथ में आ जाएगा, हमारा देश प्रोटेक्ट हो जाएगा, देश की इकॉनमी बेटर हो जाएगी। जो आज स्थिति है हमारी, मैंने आपको बोला है, अब कोई मुझे ये गलत, ये फैक्ट्स हैं, ये चेक करके अब ये ऐसे वीडियो कोई बना के बनाए मुझे। अब मेरे पास और भी बड़े फैक्ट्स हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट का है, रिलीजियस पोलराइजेशन का है, रोजर ऑफ एजुकेशन क्वालिटी का है, गवर्नमेंट करप्शन का है, ये सब है मेरे पास। लेकिन मैं आज इस वीडियो में ये इसलिए नहीं मैंने बनाई। एक लास्ट मैसेज है मेरा किसानों के लिए, मेरे सारे किसान भाई जो यूनियंस हैं, देखो आपको सबको मालूम है सरकार, मैं जो लोग पावर में हैं, जो कॉर्पोरेट है, जो मोनोपोलीज हैं, वो हमको ख़त्म करना चाहती है, हमको बदनाम करना चाहती है, हमको तोड़ना चाहती है, एक दूसरे से अलग करना चाहती है। इनकी स्थिति समझिए आप। आज हम अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, आज इकट्ठे होना पड़ेगा, इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। आज कोई भी डिसीजन लेते हैं कि मुझे ऐसे लड़ना है, ऐसे लड़ना है, प्लीज़ अकेले ना लीजिए, इकट्ठे होके बैठिए, एक दूसरे के साथ बात कीजिए कि भाई क्या है हमारी अगली रणनीति इकट्ठे होके तय करीजिए। जब आप इकट्ठे होके तय करोगे ना तो कोई बड़ी बात करोगे, और जिस दिन आप इकट्ठे होके रणनीति बनाने लगे ना तो आपको कोई हरा नहीं सकेगा, सारी दुनिया आपके साथ आ जाएगी। आपकी लड़ाई सच्ची है, मैंने ये फैक्ट्स आपसे बोले हैं। और जो लोग डल्लेवाल जी की गलत रिपोर्टें प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं उनको भी चेतावनी देता हूँ, भाई मैं नहीं, भगवान आपको माफ नहीं करेगा, ऐसा मत कीजिए। मेरे पास और भी कुछ है, बहुत कुछ है, मैं 20 मिनट की वीडियो हो गई, मैं और नहीं बनना चाहता, मैं भी अपना टाइम निकाल के ये करता हूँ। लेकिन और मैं बात करूँगा डॉक्टर्स, जितने भी अपने डॉक्टर्स हैं, मेडिकल वॉलंटियर्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहिए। जो लोग किसानों के साथ खड़े हैं, मजदूरों के साथ खड़े हैं, भाई आपकी जो लड़ाई है उसको सलाम है। घर बार छोड़ के आप लड़ रहे हो देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए। हम आपके साथ हैं, दिन रात एक कर देंगे, आपके साथ हैं, हमारे बच्चे आपके साथ हैं, सारा देश आपके साथ है। ये मीडिया थोड़ा सा घुमा रहा है, ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही बहुत है।